Hey, what's up everyone? Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Sunday, 12th of April and tomorrow Monday is Nifty's weekly expiry because Tuesday we have a market holiday. Wednesday के दिन Nifty काफी एक बड़ा gap up के साथ open हुआ and Thursday there was not much dip and Friday the positive sentiments continued, the bullishness continued. In fact, Nifty has given a close about 24,000 levels. It was kind of surprising to me as well because markets जब भी ऐसे geopolitical tension रहता है, थोड़ा बहुत एक uncertainty रहता है, the markets go into the weekend with a lot of anxiety is a big question mark. But this time the markets have gone into the weekend with a lot of confidence and VIX also has seen a decent amount of crush and now VIX is decisively trading below 20 levels and if no further negative news comes, expect the India VIX to cool off further. But over the weekend, the Islamabad talks have failed, no deal has been reached and this brings us to the question whether Trump is going to attack Iran again. This nobody knows the answers to, but in spite of the failed talks, Dow Jones hasn't slid much. अभी भी Dow Jones सिर्फ 0.5% नेगेटिव पे ट्रेड कर रहा है एंड इवन द गिफ्ट निफ्टी हैज क्लोज्ड पॉजिटिवली अबाउट 24,000 लेवल्स. सो टू टॉक अबाउट द straddles have closed at somewhere around 280 despite the fact that there was a lot of uncertainty over the weekend. So weekend पे कुछ भी हो सकता था but the straddle pricing was 280 which in my opinion was quite an underpricing of risk. So when we open on Monday on the day of expiry, this 280 rupees will most probably be opening sub 150 rupees and as we are seeing over the last 3 days the day's range has also been shrinking because 3 दिन के पहले over the last 2 weeks the day range has been around 400 to 500 points but over the last 3 days the day range has been somewhere between 150 to 200 points. So if there is no further negative news from the geopolitical front, expect the day range to shrink, expect the volatility to subside. So tomorrow we'll be going with the assumption that the markets will be opening flat or with a slight gap down. इतना बड़ा gap down हम expect नहीं करेंगे because that's what the global indices are indicating. So let's get to the terminal and let's plan our trades for tomorrow's expiry day. So ये जो daily close पे एक range सा बना रहा है and considering where the Dow Jones is trading currently, I am expecting that tomorrow we might be trading slightly in and around 24,000 levels because Dow Jones 0.5% negative trade कर रहा है. So my guess is that we might be opening somewhere around 23,950 and 24,000 levels and उसके around ही थोड़ा बहुत hover करने वाला है and I'm not expecting the breakout of these levels tomorrow because ये जो green candle जो बना ये मेरे लिए भी काफ़ी surprising था because as I said usually whenever there is uncertainty over the weekend the market goes with a question mark. एक uncertainty एक anxiety के साथ market weekend को enter करता है because over the last 4 or 5 weekends the markets have decisively closed near their day's low and उसके दिन most of the out of 6 Mondays have been gap down opening and कल भी most probably gap down ही open होने वाला है. इतना significant gap down नहीं but थोड़ा बहुत gap down open होने वाला है. That's what the markets are indicating as of now on a Sunday morning. But things can change. Sunday night अगर कुछ positive news आ जाता है तो we might be seeing a gap up open as well. But as I'm constantly saying 24,400 का जो लेवल है, this 24,400 से लेके 24,500 का जो लेवल है, this will be acting as a decent amount of resistance and जब तक मार्केट एक अपसाइड एक मुंह नहीं दिखाता and then ideally इन्वेस्टर्स को ऐसे एक प्राइस एक्शन चाहिए पहले मार्केट 25,000 के आसपास आ जाए. 25,000 पे जो बुल्स लाइक यहाँ पे पोजीशंस बना है उन लोगों को थोड़ा बहुत एग्जिट मिल जाए एंड जहाँ पे वो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं उतना प्रॉफिट बुकिंग का जो डिप में फिर से अगेन द बुल्स हैव टू कम एंड लिफ्ट द मार्केट्स हायर. तो दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन इज सूटेबल इफ यू वांट टू स्टार्ट अगेन ट्रेडिंग इन द इंडेक्स फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. सो जब तक 24,400 लेवल्स ब्रीच नहीं होता है तब तक मेरे लिए मार्केट्स इज स्टिल सेल ऑन राइज काइंड ऑफ अ सिचुएशन है. ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे बात करें तो फ्राइडे के दिन अगेन साइडवेज काइंड ऑफ अ प्राइस एक्शन फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द डे एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे मार्केट्स ने 24,000 लेवल्स को क्लियरली ब्रीच किया. ऑफ कोर्स मल्टीपल टाइम्स 24,000 लेवल पे आ रहा था एंड वहां से थोड़ा बहुत सेल ऑफ आ रहा था एंड इफ यू नोटिस द डे रेंज हैज़ ऑल्सो बीन श्रिंकिंग. तो अगर मैं थोड़ा बहुत जूम आउट करके मैं दिखाऊं तो till this point the market's day range used to be like 500, 400, even 600 points but last 3 दिन में the markets have been stuck in a small 150, 200 point के range में markets stuck हुए हैं which means that even if we get around 150 point of straddle premium tomorrow that would mean we should be doing all right on an expiry day. ठीक है, but again अगर markets 24,000 या 23,950 के आसपास open हो जाता है तो then हमारे लिए एक valid range somewhere around 23,800 and 24,000 levels
this entire 200 point will be the range. तो अगर मार्केट 24,920 24,930 के आसपास ओपन होके फर्स्ट 15 मिनट्स में ऐसे थोड़ा बहुत डिली डैली कर देता है एंड हमारे पास अगर स्ट्रैडल प्रीमियम 140 या 150 भी अगर हमको मिल जाता है, then we can easily sit on the 24,900 straddle till this particular range is breached. 23,800 and 24,020 के लेवल ब्रीच होने तक हम लोग 23,900 स्ट्रैडल पे हम लोग रह सकते हैं. ऑफ कोर्स आपका जो क्वांटिटी होना चाहिए वो उतना ही होना चाहिए जितना आप मार्क टू मार्केट का जो स्विंग्स है उतना आप झेल सको. ठीक है, अगर आपका झेलने की कैपेसिटी ज़्यादा है तो यू कैन गो विथ हायर साइज, अगर आपका झेलने की कैपेसिटी कम है तो यू कैन गो लोअर साइज. सो कल ब्रेकआउट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट अगर ब्रेकआउट आता है स्पेशली पोस्ट 12 o'clock देन आई एम विलिंग टू चेंज माई बायस एंड गो इन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट. बट मेरे हिसाब से 70% प्रोबेबिलिटी के साथ मैं कहता हूँ कि कल ब्रेकआउट नहीं हो सकता है. सो अगर हमको 24,000 के आसपास 10 o'clock के पहले एक पुल बैक मिलता है, स्पेशली आफ्टर मार्केट्स ट्रैवलिंग 100-150 पॉइंट्स ऑन एन इंट्राडे बेसिस, देन इस पुल बैक टू 24,000 लेवल्स कैन बी यूज टू एक्चुअली इनिशिएट सम सॉर्ट ऑफ अ बेरिश पोजिशंस. क्या बेरिश पोजिशंस इनिशिएट कर सकते हैं हम लोग? एट द मनी कॉल को स्टॉप लॉस के साथ सेल कर सकते हैं, और इवन यू कैन शॉर्ट लाइक अ डेबिट स्प्रेड, पुट डेबिट स्प्रेड भी कर सकते हैं, या डेबिट पुट रेशियोज भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस आई थिंक इज डिसेंट बेट. बट यहाँ पे क्या हो जाता है, बिकॉज द मार्केट्स आर बीइंग स्टक इन स्मॉल रेंज, यहाँ पे आपका जो लॉस है बिल्कुल मिनिमम होता है, बट एट द सेम टाइम प्रॉफिट आपका आने का चांसेस कम रहता है. दो दिस इज अ सेफ बेट बिकॉज मार्केट्स में आजकल इतना ज्यादा मूव नहीं आ रहा है ओवर द लास्ट 3 days, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स टू कंटिन्यू टू शो द सिमिलर काइंड ऑफ अ बिहेवियर टुमारो एज वेल. ठीक है, तो यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा ही सेफ आपको खेलना है तो देन डेबिट पुट रेशियोज यूज़ करके हम लोग एक बेरिश स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश कर सकते हैं. बट माय प्रिफर्ड स्ट्रक्चर फॉर टुमारो इज एट द मनी कॉल शॉर्ट विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, एंड 2 बार मैं री एंट्री लेने के लिए भी मैं तैयार रहता हूँ. एंड अगर मार्केट 24,050 के आसपास आता है तो देन प्रॉबली आई विल इनिशिएट अ स्ट्रैडल एट 24,000 लेवल्स, बिकॉज मार्केट 24,050 पे आएगा तो देन मार्केट्स विल अगेन डिप टू 24,950, एंड देन कहीं ना कहीं आई एम बेटिंग ऑन द फैक्ट दैट द मार्केट्स माइट गिव अ राउंड नंबर क्लोज tomorrow somewhere around 24,000 levels. But again, because these round numbers and all have become so obvious and most of the algos kind of pick on these kinds of subtle signs, then the markets will kind of give 50 or 100 point eccentric kind of a close. So but I'll go with the normal textbook approach. 24,000 पे मैं straddle बनाता हूँ, but अगर 2 o'clock के बाद अगर markets किसी भी direction में move देता है तो then I'll be nimble enough to actually change my direction. तो अभी bullish ट्रेड्स कहाँ पे ले सकता है, तो बुलिश ट्रेड्स यहाँ पे 23,800 के आसपास हम लोग बुलिश ट्रेड्स ले सकते हैं यहाँ पे, बट आफ्टर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ प्राइस एक्शन, एंड यहाँ पे हम लोग बुलिश प्राइस एक्शन ले सकते हैं. नाउ यहाँ पे दिस इज ऑल्सो लोकल मिनिमा फॉर टुमारोज एक्सपायरी, तो 24,700 के आसपास एक और है. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वी कैन एक्चुअली हैव अ क्रेडिट पुट स्प्रेड हम लोग यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं. बेसिकली एट द मनी पुट को बेचो और आउट ऑफ द मनी पुट को खरीद लो, एंड यहाँ पे हम लोग वी कैन एक्चुअली एड ऑन टू द साइज. सो यहाँ पे हमारा जो साइज है, अगर काफी कम छोटा साइज से ट्रेड हम लोग कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस उठाना है एंड देन वेट फॉर द मार्केट्स टू दिस लेवल, एंड यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जितना साइज यहाँ पे थे उसका डबल साइज पे यहाँ पे ले सकता है, बिकॉज यहाँ पे मार्केट्स वुड हैव ऑलरेडी ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स ऑन एन इंट्राडे बेसिस, एंड यहाँ पे मार्केट्स बाउंस होने का चांसेस भी ज्यादा रहता है. तो यहाँ पे आपका एक ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो देन यू कैन एक्चुअली इनिशिएट अ सिमिलर काइंड ऑफ अ ट्रेड विथ प्रोबेबली स्लाइटली हायर रिस्क एपेटाइट एट दिस लेवल 24,700. बट आई डोंट थिंक 24,700 के आसपास मार्केट्स आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल जगह पे हमको थोड़ा सपोर्ट मार्केट्स में नजर आए 23,800 के आसपास, 23,900 के आसपास, एंड इवन 23,750 के आसपास भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट्स को घूम जानी चाहिए. बट अगर मार्केट्स इन सारे सपोर्ट्स को तोड़ के यहाँ पे आता है तो देन ऑल्सो यू कैन हैव सम सॉर्ट ऑफ अ बुलिश ट्रेड एट दिस लेवल. ठीक है, अगर 10 o'clock के पहले मार्केट 24,050 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो देन वी शुड गो इन द डायरेक्शन of the trend, but the possibility of this is quite lower, and I would not give too much of weightage to this kind of a price action tomorrow. ठीक है, so tomorrow is weekly expiry guys, make a note of that, and Tuesday is again a market holiday, so I'll catch you after tomorrow's expiry. Till then, take care, bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.